language study. Topic 1, Activity 1. Complete the words by using correct letters. In this activity, any 4 words will be given from the course book. In this, one letter will be missing. You have to complete the word by writing the missing letter. You have to underline the missing letter written by you. Examples are given. DR, when one letter is missing, AM. So we will write E in the missing place. It will become dream. Then catch, CAT, CH. Similarly, brave, BRAVE. Here the missing letter is R. Next is EARLY. The missing letter is early. This will be the first activity of language study. It will carry 2 marks. Then second activity, put the words in alphabetical order. In this activity, there will be 2 activities. 4 words will be given and you have to arrange them according to their alphabetical order. Words beginning with different letters and words beginning with the same letters. First activity will be words beginning with different letters. And second will be words beginning with same letters. Now examples. First example is river, space, nature, bird. We have to arrange it alphabetically. Answer will be bird because B occurs first in a line of alphabets. Then nature, then river, and last will be space. Now we'll see the second example. Second example is damage, dragon, doctor, and difference. Here all the words are starting from the same alphabet D. So here you will see the second letter. The answer will be damage, DA, then difference, DI, then doctor, DO, then last will be dragon, DR. This activity will also carry 2 marks. Now activity 3. Punctuate the following sentences. By using proper punctuation signs, we can make the meaning of the sentence clear. Common punctuation marks are. Now यहाँ पर हम सभी punctuation marks को एक एक करके देखेंगे. Comma, full stop, question mark, exclamation mark, inverted commas, capital letters. Now one एक एक करके हम सभी एक्टिविटीज़ को देखेंगे अभी. पहला है the full stop. It is used at the end of the sentence. सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस assertive भी हो सकता है और सेंटेंस imperative भी हो सकता है. Example, the rose is red. The sentence completes here, then we will use a full stop here. Second is please come in. सेंटेंस के एंड में हम लगाएंगे full stop. ये पहला पंक्चुएशन मार्क. सेकेंड पंक्चुएशन मार्क है द क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न चिन्ह. इसको हम प्रश्न चिन्ह भी बोलते हैं. और ये कहाँ यूज़ होता है? दिस इज़ यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. जहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर ये यूज़ होता है, या क्वेश्चन टैग्स में यूज़ हो सकता है, और सेंटेंसेस दैट इंडिकेट अ क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स, वेयर इज़ योर हाउस. यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि आपका घर कहाँ है, तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ हो जाएगा. सेकेंड, शी इज़ प्रिटी, इज़न्ट शी. यहाँ क्वेश्चन टैग के एंड में एक क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है. आर दे कमिंग टुमारो, ये भी एक क्वेश्चन है, इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ. व्हेन, यहाँ पर एक सेंस है क्वेश्चन पूछने का, इसलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे. तो ये एक पंक्चुएशन मार्क है. अब तीसरा पंक्चुएशन मार्क है द एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी उद्गारवाचक चिन्ह. इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए सेंटेंस और ए वर्ड एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूज़ होती है सेंटेंस में, वहाँ पर हम उद्गारवाचक चिन्ह का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज़. यहाँ पर एक आश्चर्य प्रकट हो रहा है बारिश को देखकर, इसलिए यहाँ पर हमने उद्गारवाचक चिन्ह यूज़ किया है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है. सेकेंड है व्हाट अ लवली फेस. यहाँ पर भी उद्गार प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है. थर्ड, सच एनॉर्मस पम्पकिन्स, कितने बड़े बड़े पम्पकिन्स, आश्चर्य, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ टॉल द टावर इज़, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी आगे चलते हैं.
फोर्थ जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वल्प विराम। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? टू शो अ स्लाइट पॉज वाइल रीडिंग लॉन्ग सेंटेंस, एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, इसमें अगर थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं उस सेंटेंस के बीच में, वहाँ पर हम कॉमे का यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू सेपरेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज़ नॉट सर्टेन इफ़ ही विल कम नाउ बट यू कैन वेट ऑल द सेम। दो क्लॉजेज हैं, कंपाउंड सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमे का यूज़ किया गया है। थर्ड, बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सीरीज। एग्जाम्पल देखेंगे, टायर इज़ द अकाउंटेंट, देशपांडे इज़ सेल्स मैनेजर एंड शर्मा इज़ द एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग दिखाने के लिए, फ्रेजेस को अलग अलग दिखाने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया है। अगला पंक्चुएशन मार्क है द एपॉस्ट्रॉफी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व दर्शक विराम चिन्ह, या ये पोजीशन दिखाता है। इसका एग्जांपल है द बॉयज़ पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स यानी लड़के के पेरेंट्स। यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है बॉय में। सेकंड है कमल्स स्टोरी, किसकी कहानी? कमल की कहानी। और एक दूसरी जगह भी ये यूज़ हो सकता है एपॉस्ट्रॉफी, टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर, जहाँ पर एक लेटर को हम ओमिट कर देते हैं, ओमिशन यानी जहाँ पर हम ओमिट कर देते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल डिडंट, यहाँ बीच में डिडंट में नॉट ओ ओमिट हुआ है, इसलिए ये इसका फुल फॉर्म है डिड नॉट, यहाँ पर हमने एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका 1 o'clock, 1 of the clock। अभी अगला पंक्चुएशन मार्क हम देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास, इसको हिंदी में बोलते हैं दुहेरी, मराठी में बोलते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह। ये देखेंगे आप लोग, इस तरह का होता है ये। कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है? दिस इज़ यूज टू, सबसे पहला, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कई कई सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच का भी यूज़ होता है, उस डायरेक्ट स्पीच को अलग दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस दो इन्वर्टेड कॉमास को। एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर डिड दे गो, क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड दे गो आज द राइटर। ये डायरेक्ट स्पीच है, पूरे सेंटेंस के बीच में ये डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच को अलग दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, ये डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है। तो उसके बाद सेवेंथ पंक्चुएशन मार्क है, जो यहाँ पंक्चुएशन में हम यूज़ करते हैं वो है कैपिटल लेटर्स। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं कैपिटल लेटर्स, उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, यू आर इंटेलिजेंस, सीधा सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, यू आर इंटेलिजेंट, उसका वाई हमने कैपिटल लिखा है। सेकेंड, और कहाँ यूज़ हो सकता है कैपिटल लेटर? प्रॉपर नाउन्स में, जैसे दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसका डी कैपिटल में लिखेंगे हम। सेकेंड है मुंबई, एम कैपिटल, नागपुर, एन कैपिटल, द हिमालयाज, एच कैपिटल। तीसरा, और कहाँ यूज़ हो सकता है ये? द प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई को हमेशा हम कैपिटल में ही लिखते हैं। आई टेक माई ओन डिसीजंस। फोर्थ, विद रेफरेंस टू सुप्रीम बीइंग्स, विद रेफरेंस टू सुप्रीम बीइंग्स। एग्जाम्पल है इसका,